if you want to change your life from humanity into divinity, then you must adopt this process of meditation and continue it daily, morning and evening. And one day will come in your life when you will realize divinity in your own self. Be aware, this meditation is not related with your physique. Physical posture or position has some place in this practice, but this meditation is related with your mind and your wisdom. As I was telling you that your body, your mind, your intellect, all are projection of divine nature. But your real self is not projection of divine nature. That is our nature. That is manifested form of supreme consciousness. But purpose of meditation is to realize first causal phenomena of this universe, then you will be able to realize your own real self, not before that. And realization of causal phenomena of this universe is called bhoga, and realization of your real nature is called moksha or yoga. Bhoga and yoga both are purpose of meditation. When you will realize and be fully aware about this natural phenomena, then you will achieve sampragyat samadhi. And as I was mentioning you that you will realize oneness on the level of intellect. But when you will reach on that state, then beyond that there is a sampragyat samadhi, and that is called self-realization, and realization of real self or source of self. That is called asampragyat samadhi. So first you should try to do some practice, do some effort to realize this diverse reality or natural phenomena. And after that you will be able to realize that highest good, that is called supreme consciousness. Not before that. First sampragyat samadhi, then asampragyat samadhi. First you should try to realize oneness on the level of physique, level of mind, level of intellect. Then you will be able to realize your real self. Not before that. Lord Krishna stated in Bhagavad Gita same truth. So this process of meditation will lead you up to your highest goal, but gradually, not at once. You don't think that if you will meditate 1 day, 2 days, 1 week, 2 weeks, and you will sit some times closing eyes and mouth and this and that, and you will achieve Supreme Brahma. Not so quick. A great seer, Patanjali, told, Satu dirgha kala nairantare satkara asevite dridhomi. If you do your practice continuously, and you will take time and lovingly
respectfully, with faith and determination, then one day will come in your life when you will realize supreme cause. But before that, you will achieve peace and you will achieve happiness. Because peace and happiness are related with your mind. Okay? Peace and happiness both are related with your mind. So when you will meditate, automatically your mind will be stable. And a stable mind will give you peace. And happiness is the only reflection of peace, nothing else. Where there is peace, there is happiness. And where there is stable mind, there is peace. So peace is not highest good. Okay? That is result of stable mind. Highest good is something else. That is beyond peace. That is source of peace and source of mind and source of intellect and source of your real self. Okay? Who is realizing peace. So, you must pay your attention on your practice, daily practice, and put it twice in a day, morning and evening. That's very good time. If you will do continuously in morning and in evening, then within some days you will feel some different feeling. And I think that one day you will be able to achieve your real object, whatever you want to achieve that. As I told you, you must be aware always when you meditate. Otherwise, you will go and sleep. That will be not meditation. So pay your attention on the breath, watch your breath and take deep breath. And if you will relate mantra with breath, that will help you a lot. Because sound has great meaning. And that mantra means given by a divine master, divine teacher, and who is realized that truth, and who is practices that mantra and make that awakened. So that awakened sound will help you a lot for your meditation. Okay? So do it daily and put it your daily practice. This is a life-giving process. Okay? And you will enjoy peace and happiness in your present life. This meditation is not talking about, your salvation, your emancipation, about heaven after death. This meditation talking about your present life. What do you want to achieve in your present life? You can achieve through this practice. This is very practical, very practicable, and this is related with your present life, not after death. So, you should try to put your daily routine, in your daily routine, and do it daily practice. Here I am teaching half an hour, this meditation, as I taught you about more than 15 minutes, this ideology. Now, I am going to teach my Bhagavad Gita, 15th chapter, in my own language. Okay? So may God bless you all. May He bestow upon you all His divine grace and peace and happiness. Thank you very much. Shri Krishnam Vande Jagat Gurum. Shri Krishnam Vande Jagat Gurum. Shri Krishnam Vande Jagat Gurum. Om
जनार्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् प्रणम्य शिरसा देवं आरतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भाव प्रकाशिनी। बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो। इस शुभकामना के साथ आगे आप लोगों को 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक की व्याख्या सुनाई जा रही है। भगवान ने बताया जो परमेश्वर की शरण ग्रहण करके परमेश्वर के आश्रित होकर उस परम पद की तलाश में, खोज में, अन्वेषण में प्रवृत्त होते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इस विषय में भगवान ने बताया। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर् विमुक्ता, सुख दुख संगैर गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वे ही लोग उस अव्यय अविनाशी परम पद को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं जिनका मान, दर्प, मोह, अज्ञान, विपरीत ज्ञान नष्ट हो गया है, जो आसक्ति के अथवा कामना के दोष से मुक्त है, संग्रह वृत्ति की चाह से मुक्त है। संग दोषा का अभिप्राय होता है संग्रह वृत्ति के दोष से रहित होना। संग्रह वृत्ति स्वयं में एक महान दोष है और उस वृत्ति से मुक्त होना संग से मुक्त होना है। और अध्यात्म नित्या और नित्य प्रति आत्मा के चिंतन में निरत रहना। जो आत्मचिंतन में निरत हैं वे ही उन दोषों से मुक्त हो पाते हैं। और विनिवृत्त कामा, सब प्रकार की कामनाओं से जो विमुक्त हो गए हैं, जिनकी कामनाएं पूर्णतया निवृत्त हो गई हैं, ऐसे लोग जो काम कामी नहीं हैं, जो विषयों के रस की भावना से भी मुक्त हो चुके हैं, ऐसे विनिवृत्त कामा, इसलिए वहां भी उपसर्ग है निवृत्त कामा के साथ। विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व भाव से जो मुक्त हो गए हैं, सुख और दुख, हानि और लाभ, जीवन और मरण, शीत और उष्ण आदि जो दुख के हेतु हैं, इन समस्त द्वंद्वों से जो मुक्त हो गए हैं, जो परे हो गए हैं, जो इनकी चिंता नहीं करते। दुख भी आता है, सुख भी आता है, वो दुख में रोते नहीं, सुख में फूलते नहीं, वो दोनों प्रकार की अनुभूतियों से विरक्त हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं। और अमूढ़ा, अमूढ़ा माने वो अविद्या से भी मुक्त हो गए हैं। जैसे एक दिन मैंने बताया था कि मोह और अविद्या ये दो भिन्न भिन्न तत्व हैं।
मोह कार्य है और अविद्या कारण। यहां अमूढ़ा कहा है जो अविद्या से मुक्त है, विद्या के प्रकाश में अविद्या से मुक्त हुआ जाता है और ज्ञान के प्रकाश में मोह से मुक्त हुआ जाता है। ये दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, फिर से याद कर लो। ज्ञान के प्रकाश में मोह से मुक्त हुआ जाता है और विद्या के प्रकाश में अविद्या से मुक्त हुआ जाता है। अविद्या अमृतम तत्वा विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या विन्दते अमृतम, ऐसा श्रुति की घोषणा है। तो यहां पर अमूढ़ा कहा है अविद्या मुक्त, और निर्माण मोहा निर्मोहा कहा है अज्ञान मुक्त। तो जो अज्ञान मुक्त हो गए हैं और अविद्या मुक्त हो गए हैं दोनों से। अंग्रेजी में उसे अविद्या को नी साइंस कहते हैं और मोह को इन्फेचुएशन कहते हैं। He who become free from infatuation and cause of infatuation, नी साइंस टू। यहां पर दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे अमूढ़ लोग, अविद्या मुक्त लोग जो हैं, वही तत्पदम तद अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। वह अविनाशी पद जो है वो कहां है? कहा कहीं और नहीं है। वह तत्पद जो है, अविनाशी पद जो है, वो तुमसे भिन्न नहीं है, वह तुमसे संबंधित है। इसीलिए उपनिषद का ऋषि कहता है तत्त्वम असि, तत्त्वम असि। तुम अपने आप को ढूंढो तो तुम अपने आप को उस तत्पद की अवस्था में प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे से भिन्न वो तत्पद नहीं है। कहा यहां गच्छन्ति अमूढ़ा कहा है, तत्पदम कहा गच्छन्ति, प्राप्नोति आदि जो शब्द हैं वो उसकी अनुभूति के अर्थ में है, उस अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के अर्थ में है, उसकी अनुभूति के अर्थ में है। वो ये नहीं कि मरने के बाद तुम कहीं दूसरे लोक में जाओगे तब तुम्हें तत्पद मिलेगा, ऐसा नहीं वेद मानता, उपनिषद नहीं मानती, गीता भी नहीं मानती। मरने के बाद तुम किसी ऐसे लोक में जाकर के तत्पद नहीं पाओगे, तत्पद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। इसलिए गच्छन्ति अमूढ़ा, और उसको प्राप्त करने के लिए अमूढ़ा होना जरूरी है, अविद्या मुक्त होना जरूरी है। अविद्या के नाते ही तुम अपने को अलग और तत्पद को अलग अनुभव करते हो, मानते हो। जब अविद्या निवृत्त हो जाएगी तो तुम और तुम्हारा तत्पद दोनों एक है, ऐसा तुम अनुभव कर लोगे। इसीलिए अविद्या मुक्त ऋषि कहता है यो वसौ पुरुष सो अहम अस्मि। वह जो पुरुष है वह मैं हूं, मेरे से भिन्न नहीं है। इसी बात को समझाने के लिए ऋषि कहता है तत्त्वम असि, वह तू ही है। लेकिन तू कौन? तू शरीर क्या? नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, इनका प्रकाशक जो है, इनका प्रकाशक मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, ये मेरा कहने वाला जो है, इन सबके ऊपर अधिकार रखने वाला जो है, इन सारे यंत्रों को जो प्रयोग करने वाला है, उस आत्म स्वरूप के लिए तुम पद का संकेत होता है। और तुम पद जो है वही तत्पद है, वह तत्से अभिन्न है। लेकिन जब तक इनके साथ बधा हुआ है, इनमें आसक्त है, इनमें ममत्व है, जब तक वह इनके साथ आइडेंटिफाइड है, तब तक वह अपने आप को इनसे अलग मानता है, उस तत्पद से अलग मानता है। लेकिन जब वो अमूढ़ हो जाता है तब वो अनुभव कर लेता है कि नहीं, वह तो मैं ही हूं, मेरे से भिन्न वो तत्पद नहीं है। इसीलिए इस बात को भगवान ने आगे श्लोक में कहा न तद्भासेते सूर्यो, उस तत्पद को प्रकाशित करने वाला सूर्य नहीं है। सूर्य उस तत्पद को प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य का प्रकाश तो है, तो सूर्य के प्रकाश में उस तत्पद को तुम ढूंढो, आत्मपद को ढूंढो, आत्मस्वरूप को ढूंढो, क्या मिल जाएगा? वो नहीं मिलेगा। और सूर्य है
विश्व का प्रकाश है। जो बाह्य प्रकाश करने वाला तत्व है वह अंतर में प्रकाश कैसे करेगा? घोर मध्याह्न की दोपहरी में भी, सूर्य के प्रचंड तेज में भी तुम्हारा ज्ञान तो दूर नहीं होता, अविद्या तो नाश नहीं होती, अंदर का मोह तो नाश नहीं होता, वो तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। इसलिए न तद्भासेते सूर्यो, उस तत्पद माने उस आत्मपद को प्रकाशित करने में ये सूर्य सक्षम नहीं है, न शशांक को ये चंद्रमा सक्षम नहीं है, न पावक ये अग्नि सक्षम नहीं है। ये तीनों जो प्रकाशक तत्व हैं वो तुम्हारे आत्म तत्व को, तत्पद को प्रकाशित करने में सक्षम नहीं है। एक बात अध्यात्म के रूप में, जैसे मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि भगवान ने दो बातें समझाई है, एक तो आधिदैविक और एक आध्यात्मिक। तो जैसे आधिदैविक लेवल पर तत्पद जो है वह इस पृथ्वी लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक और क्या नाम पारमेष्टि लोक और स्वयंभू लोक से परे, वही आपके शरीर में भी ये जो बाहर के लोक हैं वही लोग आपके शरीर में यहां विद्यमान है, वही लोग आपके शरीर को भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो जो जो बाहर है वही आपके अंदर भी है। तो यदि अंदर की तरफ आप देखेंगे तो अंदर भी आपको यही दिखाई देगा कि अंदर में रहने वाले जो ये सारे लोग हैं उनको प्रकाशित करने में ये सूर्य सक्षम नहीं है। सूर्य का अंश आपके शरीर में कौन है जानते हैं? नेत्र। चक्षुः सूर्यो अजाय, परमात्मा के नेत्र से सूर्य प्रकट हुआ और जीवात्मा के नेत्र में सूर्य आकर के स्थित हो गया। तो नेत्र उस परम तत्व का बोध नहीं करा सकता। न तद्भासेते सूर्य, ये नेत्र जो है इससे वो परम पद दिखाई, आत्म पद दिखाई नहीं दे सकता। तुम चाहो कि आंख से उसको देख लो, सत्य आंख से नहीं देखा जाता। ये मैंने एक दिन और आपको बताया था कि सबसे अधिक धोखा देने वाली आपके पास जो इंद्रियां हैं उनमें नेत्र का प्रथम स्थान है। ये सत्य को नहीं पहचान करा सकती, सत्य को नहीं दिखा सकती, सत्य इनसे बहुत दूर है। ये तो जगत को दिखा सकती है और जगत में जो दिखाती है वो असत्य होता है, सत्य नहीं होता। तो न तद्भासेते सूर्यो, ये सूर्य अंश नेत्र उस आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। और न शशांको, शशांको क्या? चंद्रमा मनसो जात, ये शशांक कौन है? मन। ये चंद्रमा का अंश आपके शरीर में मन है। तो मन भी आपकी आत्मा को नहीं प्रकाशित कर सकता। मन से भी, मन की आंखों से भी आत्मा नहीं देखी जा सकती। क्या समझे? न तो इस चर्म चक्षु से देखी जा सकती है और न तो मन की आंखों से ही देखी जा सकती है। मन से भी नहीं देख सकते उसे। ये मन है अंश चंद्रमा का। तो न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक। ये पावक जो है, पावक का अंश क्या है आपके शरीर में? वाणी। वाणी से भी आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। वाणी केवल आत्मा का इंडिकेशन करती है। वेद जो है, वाग विवृता वेदा, श्रुति कहती है वाणी वेद है। वेद जो है भगवान की वाणी है। तो वेद भी आपको आत्मा का बोध नहीं करा सकते, ये तो इंडिकेट करते हैं। As I am explaining Bhagavad Gita, and Bhagavad Gita can indicate, वो है, लेकिन वो क्या है वहां तक जाने के लिए तो तुम्हें अपना प्रयत्न करना पड़ेगा। वाणी के द्वारा तत्व ज्ञान नहीं होता, ये बात याद रखो। वाणी के द्वारा आत्मबोध नहीं होता। वाणी तो आत्मबोध में सहायक है, सहायक अवश्य। यदि वाणी से तुम जानोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? लेकिन वाणी के द्वारा ही तुम्हें बोध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान ने यहां बताया न तद्भासेते सूर्यो, तुम्हारे नेत्र उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। न शशांको, तुम्हारा मन उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। और तुम्हारी वाणी न पावक,
तुम्हारी वाणी भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो। उपनिषद ने कहा कि वहां तक न तो तुम्हारे नेत्र जाते हैं, न तुम्हारी वाणी जाती है, और न तो तुम्हारा मन जाता है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां पर मन और वाणी की गति नहीं है। इसी बात को तुलसीदास ने अपनी रामायण में कहा, मन समेत जहि जानन वाणी तरक न सकई सकल अनुमानी। मन समेत जहि जानन वाणी तरक न सकई सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कहि कही जो तिहु काल एक रस रही। उसकी महिमा वेद न इति कह करके गाता है। तो जो भगवान की वाणी जो वेद है वही उसको नहीं जान सकता, तुम्हारी वाणी वहां तक कैसे पहुंचेगी? इसलिए न तत्र सूर्यो न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावक। यहां सूर्य, चंद्रमा और पावक अग्नि, ये जो तीन शब्द का प्रयोग है वो आपके अंदर रहने वाली तीन शक्तियों का निर्देश है। वाणी, मन और नेत्र। सूर्य का अंश नेत्र है, सूर्य स्थानीय नेत्र है। चंद्र का अंश मन है, चंद्र स्थानीय मन है। और पावक का अंश ये वाक है, ये अग्नि स्थानीय वाक है। ये वाणी जो है ये अग्नि स्थानीय है। मुखाद अग्निरजायत, ऐसा भी कहा है। इसलिए इन तीनों से परे तुम्हारा आत्म तत्व है। तुम्हारे ज्ञान प्राप्त करने के तीन ही साधन हैं, नेत्र है, मन है और वाणी है। और इन तीनों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसकी अनुभूति तो अभ्यास से ही होगी। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है विनय पत्रिका में, अपने प्रभु के सामने विलाप करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कहिए सुनिए समुझिए समुझाइए दशा हृदय नहीं आवे। मैं कहता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, दूसरे को समझा भी देता हूं, लेकिन वो अवस्था नहीं आती अपनी। दशा हृदय नहीं आवे, वो अवस्था प्राप्त नहीं होती। कहा क्यों नहीं होती? कहा जे अनुभव भी, उसका अनुभव नहीं है। जे अनुभव बिनु मोह जनित दारुण अति विपत्ति सतावे। उसके अनुभव के बिना मोह से उत्पन्न होने वाली ये दारुण विपत्ति रातों दिन सताया करती है प्रभु। अनुभव बिन सब फीको। इसी रूप से यहां पर भगवान ने कहा कि वहां पर सूर्य, चंद्रमा और पावक प्रकाशित नहीं करते उसे। किसको? तुम्हारे तत्पद को, आत्म पद को। यद गत्वा न निवर्तन्ते, और जहां पहुंच करके पुनः लौटना नहीं होता। यहां एक शंका होती है कि आत्म पद को प्राप्त करने पर पुनः यदि आ जाए इस संसार में तो फिर फायदा क्या होगा? हमारे यहां एक संप्रदाय है भारत में जो ये मानती है कि आत्म पद को प्राप्त करने पर भी पुनः लौट करके मृतलोक में आना पड़ता है। उनके यहां नित्य मुक्ति नहीं है, नित्य मुक्ति नहीं है। उनकी मुक्ति स्वर्ग के रूप में है, क्योंकि वो पूर्व मीमांसा के सिद्धांत को मानने वाला संप्रदाय है। इसलिए वहां पर स्वर्ग से श्रेष्ठ और कोई मोक्ष नहीं है। लेकिन उपनिषद, गीता, वेदांत इसे स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं स्वीकार करता? इसलिए स्वीकार नहीं करता कि आत्म पद को प्राप्त करने के पश्चात पुनः लौटना होता ही नहीं। इसीलिए उस